Okay, so good afternoon everyone. Today we are going to discuss here the another topic from your first unit, microbial growth, right? So yesterday in the lecture we discussed about what is actually the microbial growth and what are the generation times, okay, and what are the different phases of microbial growth curve, and some physical factor which are responsible for the microbial growth, right? Temperature and pH, and on the basis of this requirement of a different temperature, how the bacteria classify into the different types. Likewise, there is a pH also, and on the basis of pH again the bacteria classify into the three types: acidophiles, neutrophiles and basophiles, right? So in yesterday's lecture all about the microbial growth, okay. Now today we are going to discuss here how actually we can determine the generation time or the rate of microbial growth, okay, and that is known as a measurement of microbial growth, okay. So in this lecture I would like to explain you the different methods and different techniques by which we can measure the microbial growth in terms of the number, in terms of the mass, or in terms of the microbial activity, okay. Because as a biotechnologist, whenever you perform any research or any experiment in the laboratory with the help of microorganism, at that time you try to culture the microorganism into the particular medium, right? And whenever you incubate that tube or container into the incubator at particular temperature, so microbial growth will be occur. So to determine the rate of microbial growth and to determine the generation time of bacterial growth, you should perform some techniques or methods to determine the microbial growth, okay. So there are various ways to measure the microbial growth for the determination of growth rates and generation time, and for the measurement of growth either mass or population. It means that we can count the number of cells present in that particular medium, okay. Means whenever the bacteria reproduce itself and produce the new daughter cells, so that one is the exponential growth, right? So we can count the number of that exponential growth phase, right? And on the basis of that number we can determine the microbial growth, or we can determine the rate of microbial growth, okay. For the measurement of growth, either mass or population number is followed because growth lead to the increase in both, okay. But whenever we try to define the microbial growth or bacterial growth, at that time the bacterial growth nothing but the increase in numbers only, okay. But you know very well, before the cell division of bacteria, the bacteria should be enlarged, means cell mass should be increased, and that methods also we can use to measure the microbial growth, okay. So majorly on the basis of these three aspect, cell count मीन्स व्हाट कि आपको न्यूट्रिएंट मीडियम में जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नंबर आपको डिटरमाइन करना है, वो उसके बेसिस पे भी आप माइक्रोबियल ग्रोथ को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कि सेल मास, मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है उसका टोटल वेट, उसका टोटल मास अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे भी अपन माइक्रोबियल ग्रोथ का मेजरमेंट ले सकते हैं। और थर्ड एस्पेक्ट है कि सेल एक्टिविटी, इट मीन्स दैट whenever the increase the number of bacterial cell or microbial cell, it is directly proportional to the biochemical activity occur in that medium using microorganism, right? So 10 माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो बायोकेमिकल
कोई बायोकेमिकल रिएक्शन प्रभाव कर रहे हैं या वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें कुछ टाइम इंटरवल के बाद सपोज उसमें 100 हो रहे हैं, 10 बैक्टीरिया के 100 बैक्टीरिया हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस will be increased. Okay, so on the basis of that type of activity, again we can determine the microbial growth. Okay, or we can measure the microbial growth. So on the basis of these three aspects, we can determine the microbial growth. So today I would like to explain you how will you determine the number of bacterial cell or microbial cell in the medium, what are the various types of techniques we utilize, what techniques are considered as a direct method, and what techniques are considered as a indirect methods also. So there is a both type of counting, direct counting and indirect countings also. Likewise in cell mass determinations there are also direct methods and some indirect methods, right? So we will see here the different types of methods by which we can determine that we can measure the microbial growth. So basically measurement of cell growth is the total number of bacteria or total number of microbial cell in the medium we can count. Okay, and whenever we try to count the total number of microbial cell into the medium, so it may be the bacterial viable bacterial cell as well as the dead bacterial cell. Means किसी मीडियम में अपन सपोज बैच कल्चर लगा रहे हैं, उस बैच कल्चर में कंटेनर में वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, राइट? तो उसमें कुछ लिविंग सेल्स भी होंगे, मीन्स बैक्टीरियल सेल ये लाइव कंडीशन में होंगे, या कुछ जो है वायबल कंडीशन में होंगे, या कुछ नॉन वायबल होंगे, मीन्स मरे हुए बैक्टीरिया भी होंगे, राइट? सो टोटल काउंट में वो दोनों आएंगे, डेड सेल प्लस वायबल सेल्स. ओके, और उसके लिए अपन क्या करते हैं कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेल काउंटर भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका अपन यूज करते हैं. ये इस वाले इसमें क्या होगा, टोटल काउंट में आप डेड सेल प्लस वायबल सेल दोनों कंसिडर कर रहे हैं. और दूसरे इसमें क्या है कि मेजर वायबल काउंट ओनली. ओके, मेजर्स वायबल काउंट ओनली, मीन्स डेड सेल में अपन इंटरेस्टेड नहीं है, जो भी वायबल सेल्स होंगे बैक्टीरियल सेल्स उसका नंबर अपन डिटरमाइन करते हैं. ओके, सो मेजर ओनली द वायबल सेल्स and the methods utilized for this purpose, pour plate method or filtration methods. Okay, so we will see here the different methods. Okay, so when we talk, first of all we are going to discuss here the methods which are able to determine the cell number of microbes present in the nutrient medium. Okay, so how will you measure the cell number? By using the Petroff-Hauser counting chamber, that is the hemocytometers also we can say, and it is considered as a direct microscopic count. Okay, so यहाँ पे एक hemocytometer स्लाइड होती है, उस पे आप बैक्टीरिया डालते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर में आप उसको डिटरमाइन करते हैं उनका नंबर. तो ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में आता है या डायरेक्ट मेथड में आता है. दूसरा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक इन्यूमरेशन ऑफ सेल नंबर है, तो इसमें कुछ कंपनीज ने सेल काउंट करने के लिए, कॉलोनीज काउंट करने के लिए इस सेल सॉर्टर बोलते हैं, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हैं कि बाय विच वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इनसाइड द न्यूट्रिएंट मीडियम. So these two are comes under the direct methods. Then there is the plating techniques also. So by using the serial dilutions and then we can pour the sample or medium containing bacteria inside the nutrient medium or nutrient plate. There will be the three different types of methods: stick plate method, pour plate method and spread plate method, right? So the spread plate method and pour plate method routinely utilized for the measurement of cell number.
and the fourth one is a membrane filter. Okay, so we will see one by one in detail. So this one is the first method, that is a direct microscopic counting method. Okay, so direct microscopic counting में अपन बैक्टीरियल सेल का नंबर फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए क्या करते हैं? सो आपने अपने लेबोरेटरी में देखे होंगे कि एक स्लाइड होती है और उस स्लाइड को बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर. ओके, और आप देख सकते हैं कि ये बीच में एक स्क्वायर है, छोटे स्क्वायर है और बड़े स्क्वायर है, राइट. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्वायर्स हैं और वो स्क्वायर का जो भी एरिया है वो सभी स्क्वायर का इक्वल एरिया होता है. इसे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम उसमें आता है. ओके, सो अपन क्या करते हैं कि ये जो एरिया है या ये स्लाइड जो है उसके ऊपर जो स्क्वायर्स है उस जगह तक आपको अपना बैक्टीरियल कल्चर का जो मीडियम है या बैक्टीरियल कल्चर का सैंपल है जिसमें आपको सेल का काउंट करना है, वो बाय यूजिंग द माइक्रोपिपेट्स आप उसको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं. तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे वो कवर स्लिप लगाते हैं, ग्लास कवर स्लिप, और यहाँ जो दिख रहा है गैप, उस गैप में से आप बैक्टीरियल सस्पेंशन जो है वो बैक्टीरियल सस्पेंशन फोर्सफुली आप डालते हो. ठीक है, वो डालने के बाद यहाँ तक आता है, इधर से भी आप डाल सकते हैं. तो ये पूरा जो स्क्वायर पोर्शन है उसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन जाएगा. यहाँ पे बैक्टीरियल सस्पेंशन जाने के बाद ये एक इक्वल अमाउंट में आपको डालना है. ठीक है, और ये यहाँ तक आने के बाद फिर क्या होता है कि आप जब ये स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हो तो उस समय आपको इस तरह से ऑब्जर्व होता है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक स्क्वायर का जो एरिया ऑफ साइज है वो सेम है. ओके, और इसमें जो सस्पेंशन बैक्टीरियल सस्पेंशन आता है उसका वॉल्यूम भी सभी स्क्वायर में इक्वल होता है. ओके, सो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट इन ईच स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे आपको तो दिख रहे हैं 2 सेल्स हैं, यहाँ 1 सेल दिख रहे हैं, यहाँ 2 सेल दिख रहे हैं, यहाँ 1 सेल दिख रहा है, यहाँ पे 1 सेल दिख रहा है. इस तरह से आपको 25 स्क्वायर्स में बैक्टीरियल सेल्स का काउंट करना है. ओके, और 25 स्क्वायर्स का काउंट करने के बाद फिर आपको ये फार्मूला है बैक्टीरिया पर mm³. ओके, सो इज इक्वल टू द बैक्टीरियल पर स्क्वायर इंटू 25 square into 50. So the number of bacterial cell per centimeter cube is 10 to the power 3 times this value. Okay, and for example suppose the average count per square is 28 bacteria. मीन्स कैसे, यहाँ पे आप randomly square select करोगे और उसमें से हर square का नंबर चेक करोगे, मीन्स बैक्टीरियल सेल कितने हैं उस स्क्वायर में, और वो सारे जो नंबर्स आएंगे उसका आप मीन करोगे. मीन्स जैसा कि एक स्क्वायर में यहाँ पे 2 मिले हैं, दूसरे में 2 मिले हैं, 4 हो गए, राइट, तीसरे में 1 मिला. इस तरह से इसका एडिशन प्लस कितने स्क्वायर में आपने वो नंबर फाइंड आउट किया, वो नंबर ऑफ स्क्वायर. ओके, सो 25 से सपोज 25 स्क्वायर्स आप काउंट करते हैं तो 25 से डिवाइड करोगे तो उससे क्या निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगी दैट वन इज द मीन और एवरेज. ओके, सो दैट एवरेज काउंट पर स्क्वायर इज 28 बैक्टीरिया. ओके, एंड वो उस फार्मूले में डालने के बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 28 बैक्टीरिया. सपोज आपके मीन जो है 28 निकलता है तो 28 बैक्टीरियल सेल अप इंटू पर 25 स्क्वायर इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर 7. राइट, तो इस तरह से आपको जो अननोन सैंपल है बैक्टीरिया का उसमें बैक्टीरियल नंबर जो है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दिस वन इज द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड टू डिटरमाइन द बैक्टीरियल नंबर. ओके,
Then this one is the second method, that is the electronic enumeration of cell number using colony counter. इसको colony counter भी बोलते हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपने स्प्रेड प्लेट मेथड परफॉर्म करने के बाद इंक्यूबेशन किया और यहाँ दूसरे दिन देखते हो तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया सेल दिख रहे हैं, राइट. सो ये बैक्टीरियल कॉलोनीज, ये बैक्टीरियल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है. ये कॉलोनीज में, हर एक कॉलोनी में कितने बैक्टीरिया है ये भी आपको कॉलोनी काउंटर, ये इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, वो आपको बताता है. तो इसमें क्या करना है कि वो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप ये पेट्री प्लेट रख देते हो. पेट्री प्लेट रखने के बाद ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे उसका नंबर दिखेगा कि उस पेट्री प्लेट में कितने बैक्टीरियल सेल्स है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 857 बैक्टीरियल सेल इज देयर, ओके, और साइज 0.37 मिलीमीटर स्क्वायर, ओके. सो इस तरह से आप डायरेक्ट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन डिटरमाइन the number of bacterial cell, number of microbial cell directly. So this techniques also considered as a direct method for the determination of microbial number. Okay. Now we are going to discuss here what are the advantages of the direct microscopic count and what are the disadvantages of microscopic count. Okay. So you can see here in advantages, it is a rapid and simple techniques. Okay, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने सैंपल रख दिया उस स्लाइड्स पे और डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखिए, राइट. सो इट इज सिंपल एंड रैपिड. सेल मॉर्फोलॉजी कैन बी डिटरमाइंड. आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इंडिविजुअल बैक्टीरिया, रॉडसेप है, कोकाई है, या कुछ इसका शेप कैसे है वो भी आप इसमें देख सकते हैं. ये इसका एडवांटेजेस है. कैन सी द होल पिक्चर ऑफ मिल्क और एनी, कोई भी ऐसा लिक्विड है या फ्लूइड है उसमें आपको बैक्टीरिया देखना है तो पूरा आपको उसका पिक्चर्स दिख सकता है, कितने बैक्टीरिया क्या है, राइट. और डिसएडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट के? रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द ईच एनालिस्ट, मीन्स जो भी एनालिस्ट है उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसे काउंट करता है, क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. बोथ वायबल एंड नॉन वायबल आर काउंटेड, मीन्स ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड में डेड सेल भी काउंट किया जाता है, लाइव सेल भी काउंट किया जाता है, दोनों का. तो ये डिसएडवांटेजेस है. सम बैक्टीरिया में नॉट टेक द स्टेन वेल, मीन्स सपोज आप जब इसको काउंटिंग करते हो तो ट्रिफेन ब्लू या और कोई ग्राम स्टेनिंग वगैरह का स्टेन जो है उसमें स्टेन करना पड़ता है पहले बैक्टीरियल सेल को, और देन वी कैन ऑब्जर्व द अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके. सो कुछ बैक्टीरियल सेल सपोज उन्होंने स्टेन नहीं दिया तो वो आपके काउंटिंग से छूट जाते हैं. दिस वन इज आल्सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट. Then again third method for the determination of number. Okay, so this method consider as a indirect method. अभी के जो पहले के दो देखे वो डायरेक्ट मेथड थे. इसमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि द प्लेट काउंट मेथड, इसको क्या बोलते हैं? प्लेट काउंट मेथड बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका सैंपल है that sample should be diluted into the 9 ml distilled water, sterile distilled water. Okay, तो यहाँ से 1 ml इसमें डालते हैं और फिर इस ट्यूब से 1 ml जो है दूसरे ट्यूब में जिसमें 9 ml आपका वाटर रहता है, इस तरह से दूसरे ट्यूब से 1 ml निकाल के फिर इसमें फिर यहाँ से इधर, इस तरह से आप सीरियली आप उस जो सैंपल है उसको डाइल्यूट करते हैं. ओके, सैंपल डाइल्यूट होगा तो नंबर भी क्या होगा? कम होते जाएगा, राइट. और आप अच्छे से उसको गिन सकते हैं, सेपरेटेड आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज मिल सकती है उसमें, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डाइल्यूटेड जो सैंपल है वो किस में डालते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम के प्लेट में डालते हैं. मीन्स उसमें से 1 ml सैंपल जो है वो निकाल के आप पेट्री प्लेट पे स्प्रेड करते हो. ओके, यहाँ पे स्प्रेड प्लेट मेथड भी हो सकता है या पोर प्लेट मेथड भी परफॉर्म करते हैं. तो नॉर्मली यहाँ पे स्प्रेड प्लेट मेथड किए तो
इस तरह से आप, और स्प्रेड प्लेट मेथड मीन्स यहाँ से 1 ml इसमें डालोगे सभी में और स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद उस बैक्टीरियल उस पेट्री प्लेट को इंक्यूबेटर में रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, और उसके बाद फिर दूसरे दिन जो पेट्री प्लेट्स निकालते तो उस समय इस तरह से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिखता है। तो जो लास्ट डाइल्यूशन है उसमें एक भी कॉलोनी नहीं दिखती। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कॉलोनीज है, इसमें आप देख सकते हैं कि इतने कॉलोनीज है, फिर भी ये नंबर जो है आप काउंट कर सकते हो, इसमें भी काउंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो है ये टू मेनी बैक्टीरियल सेल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, और ये कॉलोनी जो है आपको काउंट करने में दिक्कत आ सकती है। ओके, सो अपन क्या करते हैं, यहाँ से ये जो 3 है इसको ही काउंट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 159 कॉलोनीज है, 17 कॉलोनीज है, 2 कॉलोनीज है और यहाँ पे 0 कॉलोनीज है। तो इसका कैसे निकालते हैं, 159 कॉलोनीज इंटू 10 to the power 3, दैट वन इज द डाइल्यूशन फैक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना 10 to the power 3, दैट वन इज द डाइल्यूशन फैक्टर। तो जितने कॉलोनीज मिलते हैं उसको उसके डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का, और जो वैल्यू निकलेगी 1.59 इंटू 10 to the power 5, इतने सेल्स जो है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में है पर मिलीलीटर ऑफ ओरिजिनल सैंपल। मीन्स पर मिलीलीटर पर ml में कितने हैं 1.59 इंटू 10 to the power 5 bacterial cell is there. Okay, so in this way we can determine the number of bacterial cell inside the nutrient medium or in the sample. Okay, so this is the plate count method to determine the ये उसी का पार्ट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये इसमें से इधर न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं पेट्री प्लेट में, तो उसमें अपन 2 मेथड यूज करते हैं और आप लोगों ने परफॉर्म भी किया है ये एक्सपेरिमेंट। ओवर प्लेट मेथड है और स्प्लिट प्लेट मेथड है, राइट। तो आपको क्या करना है 0.1 ml जो है उस ट्यूब में से सैंपल लेना है, 100 माइक्रोलीटर इसमें ये करते हैं और स्प्रेड कर देते हैं स्प्रेडर से, राइट, और इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद यहाँ पे इस तरह से कॉलोनीज दिखती है। ओवर प्लेट मेथड में क्या करते हैं कि कोनिकल क्लास में जो मीडिया बनाते हैं उस मीडियम में 1 to 0.1 ml आपका बैक्टीरियल सस्पेंशन डालते हैं और वो उसको मिक्स करते हैं अच्छे से मोल्टन अगार में, और वो अगार मीडियम फिर इसमें डालते हैं पेट्री प्लेट्स में। पेट्री प्लेट में डालने के बाद उसको हिलाते हैं, स्विंग्स करते हैं, और फिर उसमें भी इंक्यूबेशन के बाद आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखती है। सो इन दिस वे द ओवर प्लेट मेथड या स्प्रेड प्लेट मेथड, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं उसको प्लेटिंग करते समय। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस हियर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओवर प्लेट मेथड। ओके, एडवांटेजेस क्या है, गिव ए मोर इवन लॉन। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कॉलोनी के फॉर्म में अच्छे से आप अबाउंड कर सकते हैं, वो ऐसे लॉन में मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिक्वायर यूनिवर्सल बॉटल्स ऑफ अगर एट जस्ट द राइट टेम्परेचर। जो ओवर प्लेट मेथड होता है तो वो सॉलिडिफाई होने के पहले ही मीडियम जो है आपको उसमें बैक्टीरिया डालना पड़ता है उस मीडियम में, और फिर वो मिक्स करके पोर करना पड़ता है पेट्री प्लेट में। तो वो सपोज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें मर जाएंगे बैक्टीरिया से, राइट। या कभी कभी ये हो सकता है कि आपका जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होने लगेगा, तो वो इट विल अगेन अफेक्ट द रिजल्ट। ओके, सो दिस वन इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड जो करते हैं उसका एडवांटेज क्या है, इट इज इजी टू हैंडल। इजीली आप जस्ट 100 माइक्रोलीटर उसकी सरफेस पे डाल दो सॉलिडिफाइंग मीडियम पे और उसको स्प्रेड प्लेट मेथड से स्प्रेड कर दो। ओके, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, मेक गिवन एंड इनइवन लॉन, म्हणजे कहीं कहीं बहुत क्लम्प मिल सकते हैं, ऐसे सेपरेटेड कॉलोनीज दिखने नहीं दिखेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दिस वन इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्प्रेड प्लेट मेथड। Now the fourth method, this one is the fourth method by which we can
count the bacterial number. Okay, so this method known as a indirect method of bacterial number determination, and it is known as a counting bacteria by filtration method. Okay, so this one is the filtration method. आप क्या करते हैं कि आपका जो भी बैक्टीरियल कल्चर का सैंपल है, सस्पेंशन है, वो एक फिल्टर या एक जो पोरस मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू पास करते हैं। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ फिल्टर लगाए, ये डिफरेंट पोरोसिटी के अपन फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, ताकि आपके बैक्टीरिया जो है उस फिल्टर आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगाते हैं और ऊपर वाले कंटेनर में आपका जो ये है सैंपल है वो सैंपल उसमें रखते हैं। सैंपल रखने के बाद फिर सैंपल जो है परकोलेट होता है नीचे के इसमें पॉट में, और जितने भी बैक्टीरिया इसमें हैं वो बैक्टीरिया इस फिल्टर में रहते हैं। ओके, इमोबिलाइज होते हैं। और फिर ये जो फिल्टर है वो फिल्टर वी कैन रिमूव। ओके, एंड in this way with the help of forceps we can remove that filter, and then that filter or that membrane containing the bacterial cells now keep above the nutrient medium in petri plates. Okay, तो petri plates में वो फिल्टर ऐसे रख देते हैं। उसमें क्या होगा कि इस फिल्टर के ऊपर जितने बैक्टीरियल सेल होंगे वो बैक्टीरियल सेल न्यूट्रिएंट मीडिया यूटिलाइज करके ग्रो होंगे। ओके, एंड इंक्यूबेट फॉर 24 आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस, एंड आफ्टर इंक्यूबेशन व्हेन वी ऑब्जर्व द पेट्री प्लेट्स, सो उस फिल्टर के ऊपर में बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनीज उसमें दिखेगी। ओके, सो जैसा प्रीवियस मेथड में जितने कॉलोनीज है उसका फार्मूला है और डाइल्यूशन फैक्टर उस हिसाब से अपन निकालते हैं, वैसे ही इसमें भी या डायरेक्ट ये कॉलोनीज आप गिन सकते हैं। ओके, सो इस तरह से अपन इसका नंबर देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉलोनीज जो है आप इसमें ये पेट्री प्लेट्स जो है आप सेल काउंटिंग के लिए रखते हो तो इस तरह से आपको दिखेगा। सो दिस वन इज द filtration method utilized for the counting of bacterial number. इसी में किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ कंफ्यूजन है तो पूछते जाओ बीच में। Now we going to discuss here the viable count method. Okay, so इसका क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये जो अभी के अपन ने देखे पोअर प्लेट मेथड और फिल्टर वाले मेथड, ये दोनों मेथड किस में आते हैं? वायबल काउंट में आते हैं। मींस जिंदा बैक्टीरिया रहेंगे तो ही वो ग्रो होंगे। डेड सेल सपोज उसमें है आपके सैंपल में, सो डेड सेल अनेबल टू ग्रो ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड एंड प्लेटिंग मेथड just we can count the viable bacterial cell only. So इसका एडवांटेजेस क्या है? कैन सी द सेल मार्कोलॉजी, इसमें अपन सेल मार्कोलॉजी या कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन देख सकते हैं। काउंट वायबल सेल ओनली, कैन बी यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स, मिल्क प्रोडक्ट या अदर कोई भी ये है लिक्विड है उसमें आपको उसका बैक्टीरियल नंबर देखना है तो देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इस मेथड्स के? ये दोनों देखे अपन वायबल काउंट के। इट विल टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज इंक्यूबेशन है दोनों में, तो आपको 24 आवर 48 आवर्स वेट करना पड़ता है, और लॉट्स ऑफ ट्यूब्स एंड टेडियस मेथड है। मीन्स आपको ट्यूब्स भी मीडिया भी ये सब कुछ लगता है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। Now we going to discuss here the second type or second aspect, right? अभी तक अपन ने जो देखे थे वो सारे 4 मेथड्स किसके हैं? उसमें 2 मेथड थे डायरेक्ट, 2 मेथड थे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में आपने माइक्रोस्कोपिक एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर देखा, कॉलोनी काउंटर, और इसमें जो वायबल सेल अपन काउंट करते हैं उसमें क्या क्या देखा आपने? प्लेटिंग मेथड्स और आपका plating method and filtration methods. Okay, now we going to discuss here the determination of or measurement of microbial growth based on the measurement of cell mass.
यहाँ पे आप नंबर काउंट नहीं करेंगे, आप क्या काउंट करेंगे, सेल मास काउंट करेंगे। मीन्स 100 सेल्स है तो उसका वेट आप निकालना है, 50 बैक्टीरियल सेल है तो उसका वेट कितना है वो निकालना है। ओके, सो अल्टीमेटली द मास ऑफ बैक्टीरियल सेल वी कैन डिटरमाइन। ओके, so how will you determine the how will you measure the cell mass? By using the dry weight method, by using the turbidity method or turbidometric method, and the amount of substance like protein, nitrogen, chlorophyll if it is algae. Okay, so the chemical content आप measure करते हो, या तो टर्बिडिटी मेजरमेंट करते हैं बाय ऑप्टिकल डेंसिटी उसका चेक करके, और पहला क्या है, ड्राई वेट उसका मेजर कर सकते हो। दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच वी कैन मेजर द सेल मास। ओके, टोटल सेल मास वी कैन मेजर। ओके, सो ड्राई वेट वाला मेथड जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है आपको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल जो सैंपल है उसमें पहले सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर उसका पैलेट जो पीपीटी मिलेगा उस पीपीटी को अलग करना पड़ेगा, सुपर नेटेंट अपन डिस्कार्ड कर देंगे, और वो पीपीटी जो मिलती है वो पीपीटी को ओवन में रखना पड़ेगा 180 डिग्री सेल्सियस पे। उस पर क्या होगा कि वो जो बैक्टीरियल सेल में वाटर कंटेंट है, लिक्विड है, वो सब इवेपोरेट हो जाएगा और सभी बैक्टीरियल सेल जो है वो ड्राई हो जाएंगे कम्प्लीटली, और फिर वो जो बैक्टीरियल सेल का पाउडर है उस पाउडर का आप क्या करेंगे, बैलेंस पे वेट लेंगे, और इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द ड्राई वेट। ओके, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल मास ऑफ द बैक्टीरियल सेल मास। ओके, सो इस तरह से ये ड्राई वेट ये करते हैं। देन क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर सेल कंस्टिट्यूएंट, मीन्स आप तो एक तो डीएनए एस्टिमेशन कर सकते हैं, जैसा डाइफिनिलामाइन आपके बैक्टीरियल सेल है, सो सपोज वो नंबर्स ज़्यादा है तो उसमें डीएनए का भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा ना, कम नंबर से तो कम रहेगा। सो एटीपी हो, क्लोरोफिल हो, या डीएनए हो, या प्रोटीन हो, ये मॉलिक्यूल का आपको कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन देन वी कैन डिटरमाइन द सेल मास। ओके, सो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड सेल मास का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसके साथ आपका अननोन का केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये आपको चेक करना पड़ेगा, और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करके उसका आप अननोन वाले का concentration निकाल सकते हैं, and on the basis of that chemical constituent concentration we can determine the cell mass. Okay, then there is a third method, turbidometric methods. So that one is the light scattering methods, and it is quick and easy and very sensitive as compared to the dry weight and the chemical constituent methods also. So determination of the cell mass concentration by using the direct method, इसमें से डायरेक्ट कौन सा है, ड्राई सेल वेट, ये डायरेक्ट मेथड हो गया, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये डायरेक्ट मेथड हो गया, और ऑप्टिकल डेंसिटी जो कि टर्बिडोमेट्रिक मेथड बोलते हैं वो भी डायरेक्ट मेथड में ही आता है। सो ड्राई सेल वेट कैसे निकालते हैं, द सैंपल ऑफ बैक्टीरिया or bacterial broth is centrifuged first, washed it, and whatever the pellet we get, that pellet should be dried at 80 degrees Celsius for 24 hours, and then the offline measurement means the weight, cell weight can perform in the process. Okay, so आपको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद फिर उसका वेट लेना है। पैक सेल वॉल्यूम में क्या होता है कि आपको उसको ड्राई नहीं करना है, जैसे आपने पीपीटी मिला है उस पीपीटी का ही डायरेक्टली वेट सैंपल का ही आपको वेट मेजर करना है। ओके, सो डायरेक्टली द सेल पैलेट जो है उसी का वेट करना है, तो उसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। और तीसरा जो है ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स उसमें आपको ओडी मेजर करना है।
ओके, सो नंबर बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा बैक्टीरियल सेल का, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ जाएगी. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी. ओके, so now we are going to discuss here the measuring of bacterial mass. means लायु प्लस डेड दोनों रहेंगे इसमें. ओके, डेड वाले भी रहेंगे और लायु भी रहेंगे इन लिक्विड कल्चर. कोई भी ये वो कोनिकल फ्लास्क में हो सकता है या ट्यूब में हो सकता है. तो इसमें जो भी बैक्टीरिया है, डेड सेल और लाइव सेल, वो दोनों का मास अपने को डिटरमाइन करते हैं डायरेक्ट ड्राई वेट वाले मेथड से या वेट वाले मेथड से भी. और टर्बिडोमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं, तो टर्बिडोमेट्रिक मेथड में जितना ज्यादा मास रहेगा, बैक्टीरियल सेल नंबर रहेगा, उतना ये सॉल्यूशन जो है ज्यादा टर्बिड दिखता है, क्लाउडीनेस ज्यादा दिखेगा. ओके, सो वी ट्राई टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. ओके, सो उसके लिए आपको एक कोलोरीमीटर होता है. उस कोलोरीमीटर में आप ट्यूब्स रहती हैं, वो ट्यूब में आपको बैक्टीरियल से सस्पेंशन लेना पड़ता है और उस कोलोरीमीटर में रख दोगे तो क्या होता है, कोलोरीमीटर में एक जगह पे लाइट सोर्स होता है, वो लाइट सोर्स उस सेल्स से पास होगा. जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतना ज़्यादा वो लाइट जो है एब्सॉर्ब करेगा ये सेल्स, और उतने ही कम इंटेंसिटी का लाइट ट्रांसमिट होगा. एंड दैट ट्रांसमिटेड रेडिएशन कैन डिटेक्ट बाय द फोटो मल्टीप्लायर और फोटो डिटेक्टर, and it will convert the result into the digital format. Okay, and we can measure the optical density of that particular sample. And in this way we should prepare the standard bacterial tubes, and one is the unknown. Okay, so 5 आपके पास स्टैंडर्ड रहेंगे, उसका जो बैक्टीरियल मास है वो आपको पता होगा, और एक आपका जो अननोन है उसका जो आपको डिटरमाइन करना है वो. तो 5 का आपको स्टैंडर्ड ओडी मिलेगी और अननोन का एक ट्यूब का भी आपको ओडी निकालना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको आपके अननोन सैंपल का बैक्टीरियल सेल मास डिटरमाइन होगा. ओके, सो इस तरह से अपन वो टर्बिडोमेट्रिक मेथड्स परफॉर्म करते हैं. This one is the basic principle of turbidometric method. Turbidometric methods for the bacterial number or bacterial mass. तो यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, ये ट्यूब है, ब्लैंक है, इसमें कोई भी सेल नहीं है, तो 100 कोई भी एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, डायरेक्ट 100% रेडिएशंस यहाँ तक पहुँचेंगे, एंड इट विल गिव द जीरो ओडी. ओके, जीरो एब्सॉर्प्शन. But in the second case, these tubes having a medium and containing the bacterial cells. So whenever the radiation passes through that tubes, the sunlight radiation energy absorbed by your individual bacterial cell, and that's why the low intensity light actually coming toward the detector, and that detector will show you the some optical density, that is the based on absorption of light radiations by the bacterial cells. And on the basis of optical density we can determine the number of bacterial cells also and mass, cell mass also. ये दोनों इसमें आता है. Now the determining the cell mass concentration with the help of indirect method. अभी अपन ने 2 मेथड्स देखे, जैसा टर्बिडोमेट्रिक मेथड्स और ड्राई वेट पैक्ड वॉल्यूम. ओके, ऐसे 3 मेथड्स हो गए आपके. ये जो डायरेक्ट मेथड यूटिलाइज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मास. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस हियर द इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड मीन्स इन विच वी कैन काउंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNA, concentration of DNA, concentration of nitrogen, right? So in this way the chemical constituent concentrations we can determine. Okay, and on the basis of that reading we can again determine the cell mass concentration. And सबसे लास्ट है अभी ये कि उसमें अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल एक्टिविटी. अपन ने पहला कौन सा दिया, सेल नंबर काउंट करने का मेथड देखे, और उसके बाद 3 मेथड इसके देखे सेल मास का डिटरमाइन करने के,
और ये थर्ड एस्पेक्ट है कि सेल एक्टिविटी, बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो सेल एक्टिविटी के बेसिस पे भी अपन ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा कि कुछ बैक्टीरिया कुछ पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसा बैसिलस जो है तो वो क्या करता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, राइट। सो वी कैन डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज एंजाइम्स, राइट। सो दैट एक्टिविटी इंक्रीज whenever the bacterial cell will be increased, okay. So depending of that biochemical activity totally depends upon the number of bacterial cells, okay. So in which we can measure the specific chemical changes by metabolic activity of microorganism can be correlated with the microbial growth, and cell metabolic activity result into the formation of any specific मेटाबोलाइट्स, ओके। सो जो भी बैक्टीरिया के थ्रू कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन अगेन वी कैन डिटरमाइन द बैक्टीरियल ग्रोथ, ओके। सो दिस वन इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ, ओके। तो इसमें क्या क्या अपन नहीं कर सकते, लैक्टिक एसिड कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं तो लैक्टिक एसिड का आपको कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ प्रोड्यूस करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। CO2 कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं तो उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा। द मेजरमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्म्स the principle of measurement of cell activity and the amount of acid produced to the magnitude of cell suspension, उस सेल सस्पेंशन में कितने बैक्टीरियल सेल है उसके बेसिस पे उसकी एक्टिविटी उतनी रहेगी, ओके। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज फॉर द डिटर्मिनेशन और मेजरमेंट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ, ओके। Now we are going to discuss here the last point from this unit, first unit, that is what is pure culture, how pure culture isolates in the laboratory, and how the pure culture should be maintained in the laboratory, okay. So this practical already we perform in the laboratory, so already you people already understand what is actually the pure culture, right? But again I would like to explain you. Pure culture nothing but the all the bacterial cell originated from the single type of organism, right? So you can see here the consist of only a single type of organism, right? So bacterial culture in which only single type of bacterial organisms suppose present है तो उसको अपन pure culture बोलते हैं, right? When working in the laboratory, sometimes we need to work with a single species of organism, right? तो जब भी मैंने प्रैक्टिकल के वक्त बताया था कि कोई भी एक बैक्टीरिया के ऊपर अपने को स्टडी करना है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी बायोकेमिकल एक्टिविटी, तो मिक्स बैक्टीरिया रहेंगे तो उसमें स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए अपने को प्योर कल्चर्स की आवश्यकता होती है। एंड प्योर कल्चर मस्ट बी ऑब्टेन आर्टिफिशियली, मीन्स इन लेबोरेटरी वी कैन manually we can isolate the pure cultures, okay. So you know very well which type of methods we utilize for the isolation of pure culture, right? So you can see here on the slide, this one is the mixed culture. Mixed culture मतलब कि उसमें more than one species of bacteria or microbes उसमें रहेंगे। जिस कोई भी कल्चर हो उसमें सपोज more than one microorganisms रहते हैं species, तो उसको मिक्स कल्चर बोलते हैं। प्योर कल्चर का मतलब है कि ओनली वन स्पेसीज इज देयर, ओके। एंड द मेथड्स वी यूटिलाइज फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, दैट इज अ स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड, कोर प्लेट मेथड एंड स्प्रेड प्लेट मेथड। ऑलरेडी दिस थ्री मेथड्स यू नो वेरी वेल हाउ वी कैन परफॉर्म द स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड इन द लेबोरेटरी, कोर प्लेट मेथड एंड स्प्रेड प्लेट मेथड, राइट। स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड में क्या करते हैं कि लुकफुल कल्चर लेते हैं, उस लुकफुल कल्चर को आप अपने न्यूट्रिएंट मीडियम, सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम की जो आधार प्लेट है उसके 4 वे स्ट्रिकिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग नीडल से, राइट।
और 4 क्वाड्रेंट में आपको स्टिकिंग करके उसके पेट्री प्लेट को इंक्यूबेट करना पड़ता है। ओके, और इंक्यूबेट करने के बाद फिर आपको दूसरे दिन ऑब्जर्व करना पड़ता है bacterial colonies, and isolated colonies indicates the pure culture. Okay, likewise pore plate method में कैसे अपन प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी देखे हैं कि आपका न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा, सॉलिडिफाई जो अगार मीडियम रहेगा, लेकिन वो मोल्टन रहेगा 55 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तभी आपको उसके अंदर में आपका सैंपल डालना है जिसमें बैक्टीरिया थे और उसको मिक्स करना है प्रॉपरली, और फिर वो बैक्टीरियल वो पेट्री डिश में फिर पोर करना है और फिर उसको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करने के बाद आप फिर से उसको दूसरे दिन जब ऑब्जर्व करोगे, सो देयर विल बी द so many bacterial colonies within the nutrient medium, and each colony act as a pure culture. Likewise, spread plate methods techniques also utilized for the isolation of pure culture, in which we can transfer the 100 microliter sample on the surface of solid agar medium, and with the help of spreader, glass spreader, we can spread that 100 microliter samples over the surface of nutrient medium, and then that petri plate should be incubated into the incubator at particular temperature like 37 degrees Celsius temperature, and after incubation period, after 24 hours to 48 hours, you can observe the plates and we can observe the distinct colonies of bacteria on the surface of nutrient medium, and each distinct colony act as a pure culture. Like so, these three common methods utilized for the isolation of pure culture. Now how will you maintain that pure culture in the laboratory for a long time? Okay, so आपको पता है कि अभी आपको ग्रोथ पता हो गई, तो जैसा बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है न्यूट्रिएंट मीडियम, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे न्यूट्रिएंट का स्कैरेसिटी डेवलप होगा, राइट। सो आपको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद आपको ये जो कल्चर है वो कल्चर प्योर कल्चर आपको सब कल्चर करने की जरूरत है, मीन्स न्यू ट्यूब में ट्रांसफर करने की जरूरत है, राइट। सो सम बैक्टीरियल सेल पिक अप फ्रॉम दिस ट्यूब्स, ओल्ड ट्यूब्स, एंड ट्रांसफर इनटू द न्यू न्यूट्रिएंट ट्यूब। ओके, so in which fresh nutrient medium is there, so we try to provide the fresh nutrient medium. Okay, so frequently you should perform the subculturing for the maintenance of pure culture in the laboratory. Okay, and after that you want to preserve the pure culture for a long time. Okay, so that one is the preservation technique of pure culture. So there will be the different types of techniques we utilize in the laboratory for the preservation of pure culture. First one is the refrigerator, then paraffin coating, cryopreservation and lyophilization. These are the different methods by which we can preserve the pure bacterial culture in the laboratory. Okay, so रेफ्रिजरेटर आपको अलग अलग मिलते हैं। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस वाला नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आप बैक्टीरियल कल्चर रख सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए 2 to 3 वीक के लिए। लेकिन आपको सपोज मंथ में 2-2, 3-3, 4-4 महीने रखना है तो आपको -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन सपोज आपको बैक्टीरिया जो है 6 महीने 1 साल के लिए आपको रखना है तो उस समय आपको क्रायो प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, राइट। और लाइफलाइजेशन ये भी एक टेक्निक है, अपन देखते हैं इसको क्या करते हैं। सो हाउ विल यू प्रिजर्व द आइसोलेटेड प्योर कल्चर इन द लेबोरेटरी। सो आप पता स्टिक प्लेट ऐसे स्टिक करके भी आप रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। ओके, और लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और लिक्विड कल्चर भी आपको क्या करना है कि उसको लॉन्ग टाइम सपोज आपको प्रिजर्व करना है क्रायो, तो उसके साथ आपको क्रायो प्रोटेक्टेंट भी डालना पड़ता है। सो आपका कल्चर प्लस ग्लिसरॉल या तो DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सो ये दोनों में से कोई एक जो है एज ए क्रायो प्रोटेक्टेंट करके यूज करते हैं। सो आपका कल्चर प्लस ग्लिसरॉल या तो आपका कल्चर प्लस DMSO ऐसे आप मिक्स करके उसको
लोअर टेम्परेचर पे रख सकते हैं, जैसा कि क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो -196 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना है, तो उस समय बैक्टीरियल सेल के अंदर का वाटर जो है उसको क्रिस्टल बन के वो रप्चर करेंगे सेल को और मार देंगे। तो इसके लिए क्या है कि वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट उसके साथ डालना पड़ता है। तो या तो आप ग्लिसरॉल डालो या तो आप DMSO डालो, ओके। और फिर वो क्रायो वायल में आपको क्रायो प्रिजर्व इस वायल में रखना है, और वो वायल्स जो है लिक्विड नाइट्रोजन में रख सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सो नॉर्मली क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूटिलाइज करते हैं। ये वायल्स जो है आप लिक्विड नाइट्रोजन पे रख सकते हैं, एंड दैट वन इज द क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। अनदर टेक्निक इज देयर, दैट वन इज द लाइफलाइजेशन, ओके। सो इसको बोलते हैं, ये एक्चुअली ड्राई होता है, पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, मीन्स जो बैक्टीरियल सेल है उसको अपन ड्राई करते हैं कंप्लीट। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका लिक्विड है वो लिक्विड का सब्लिमेशन के थ्रू मीन्स डायरेक्ट पाउडर में सॉलिड करेंगे, उसका वेपर बनने ही नहीं देंगे, ओके। डायरेक्ट वो सॉलिड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग मेथड, ओके। सो एक इंस्ट्रूमेंट आता है लाइफलाइजर करके, उस इंस्ट्रूमेंट में ये लाइफलाइजेशन टेक्निक करते हैं। जैसा मैं गुजरात में था तो हमारे लेबोरेटरी में लाइफलाइजेशन था, तो हमने जो डेनमार्क के बैक्टीरिया थे मेरे, तो उसको मैंने लाइफलाइज करके रखा था। इस तरह से आप लाइफलाइज भी करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए भी रख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और वेन एवर यू रिक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर कल्चर, then again you can revive that culture, means small cells amount of that culture you can pick up with the help of inoculating needle, and then again you can strict on the nutrient medium, and that bacteria again able to grow on the nutrient medium after 2 years, after 4 years, after 5 years. If you require that culture, so you can revive it easily. So these are the some techniques we utilize routinely in the laboratory to preserve and maintain the isolated pure culture, okay, safely. So I think here is your first unit complete, and if you have any questions regarding today's lecture,